Hello friends, welcome to Alphabet Tutor. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about today's very important, most important questions based on COVID-19 or coronavirus. So this is also very important for upcoming examination like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railways or other competitive exam. So guys, please subscribe my channel, like my video and share this video after completion with your friends and loved ones. So today we started coronavirus or COVID-19 questions, but something intro about the COVID-19. COVID is spreading globally, but important is to take necessary measures. Coronavirus diseases is named by the World Health Organization on 11th Feb 2020 as COVID-19. WHO declared a global emergency on 30th Jan 2020. An investigation is going on to determine more about its outbreak. So today's first question we started. Which one of the following statement is or are correct about the favipiravir? So option A is favipiravir is an antiviral COVID-19 drug. B. Glenmark Pharmaceutical under the brand name Fabiflu has launched an antiviral drug Favipiravir. C. It is India's first COVID-19 drug launched priced at Rs 103 per tablet. So D is all of the above. So answer is D, all of the above. Now on description, जैसा कि हमें पता है, अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फेविपिरावायरस जो है ये एक एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग है. ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल अंडर द ब्रांड नेम इस फेविफ्लू के नाम से लॉन्च किया गया. एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर is an India's first COVID-19 drug. This is launched with the price is 103 per tablet. Now question number 2. How many countries, areas or territories are suffering from the novel coronavirus outbreaks in the world? Option A more than 50, B more than 100, C more than 150, D more than 200. So answer is D more than 200. Now on description, जैसा कि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा देखें हम तो 216 कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है ये वायरस. अराउंड एरिया और टेरिटरीज की बात करें तो सफरिंग फ्रॉम द नोवेल कोरोना वायरस और कोविड-19 ये आउटब्रेक कर चुका है टिल 11 जून 2020 को वर्ल्ड वाइडली. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Thailand announced that it has to proceed to test its novel coronavirus vaccine on which animal or bird? Option A monkey, B lizard, C hens, D kites. So answer is A monkeys. Now on description, जैसा कि हमें पता है कि थाईलैंड में पहली बार जो है हमें आफ्टर द पॉजिटिव रिजल्ट हमने जब देखा तो माइस में अभी जो है पहले जो इन्वेस्टिगेशन पहली प्रोफाइलैक्सिस जो की गई थी वो माइस में की गई थी, लेकिन थाईलैंड ने ये अनाउंस किया है अगर ये टेस्ट हम या ये वैक्सीन जो है हम मंकीज पे करें तो दे वुड बी गो फॉर अ वेरी गुड रिजल्ट ड्यू टू द मैसेंजर mRNA is technologically to weaken the strain of the virus and produce antigenic to fight against the antibodies through the virus from the root or through the immune system. Now we got about the Thailand. So this is the kingdom of the Thailand and the flag or the emblem of the Thailand. Now the location of the Thailand in the map in the dark greenish color. Now this is the capital Bangkok, the administrative area or special administrative. Now the currency is Thai baht. Important है. Now the king of the Thailand is Maha Vazira Longkong. Now, the Prime Minister of the Thailand is Prayut Chan-o-cha. Now, question number 4. In a study which cells are found in the COVID-19 patient is bode well for long-term immunity. Option A P cells, B D cells, C T cells, D endothelial cells. So answer is C T cells or T helper cells. Now on description, जैसा कि हमें पता है T cells is one of the lymphocytic cells because B टू टाइप की सेल्स होती है, B cells और T cells, जिसमें से T cells जो रहती है वो T helper cells की तरह वर्क करती है और ये इम्यून वॉरियर्स की तरह फाइट करती है थ्रू दी
एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में। और ये एक इम्पॉर्टेंट जो हम बोल सकते हैं कि बॉटलिंग SARS-CoV-2 वायरस में इजीली जो है हमें देखने को मिलता है, ये कॉज करता है कोविड-19 को, बट ये अनक्लियर है अभी तक, बिकॉज गोइंग टू बी मे बी अ फ्रूटफुल कि हमें यहाँ तक पहुँच गई है हमारी इन्वेस्टिगेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, name the virus or name the vaccine that is jointly developed by the German company BioNTech and US pharma giant Pfizer for COVID-19. Option A BNT162, B Picova CC, C both A and B, and D is neither nor of A or B. So answer is A BNT162. Now the explanation, BNT162 एक jointly developed जर्मन कंपनी BioNTech और US फार्मा कंपनी की एक जायंट Pfizer कंपनी है। यह ग्रुप 4 पोटेंशियल वैक्सीन के बेस पर एक mRNA या हम बोल सकते हैं mRNA पे बेस्ड वैक्सीन कंसेप्ट इन्होंने निकाला है फॉर द मेकिंग अ वैक्सीनेशन। बट अगर हम पिकोवा सीसी की बात करें तो ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो डेवलप होती है प्राइवेट बायोफार्मा कंपनी में, जैसे सिनोवैक में ये वैक्सीन जो है क्लिनिकली ट्रायल फेज में जा चुकी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू अ कोरोना वायरस पेशेंट हु इज इन द क्रिटिकल कंडीशन। ऑप्शन ए प्लाज्मा थेरेपी, बी सॉलिडेरिटी, सी रेमडेसिविर, डी इज हाइड्रोक्लोरोक्विन। सो आंसर इज ए प्लाज्मा थेरेपी। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है कि प्लाज्मा थेरेपी एक कॉन्सोवेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी हम क्लिनिकल ट्रायल के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ये ब्लड को ट्रांसफ्यूज करवाता है। इसमें हम कोविड-19 पेशेंट को कोरोना वायरस पेशेंट जिसे हम बोलते हैं, ये क्या करता है, इसे रिकवर करने की कोशिश करता है। जो क्रिटिकल कंडीशन तक पेशेंट पहुंच जाते हैं उन्हें रिकवर करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट, कैसे कोरोना वायरस ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन ए व्हेन अ पर्सन स्नीज और कफ, ड्रॉपलेट्स स्प्रेड इन द एयर और फॉल ऑन द ग्राउंड एंड नियर बाय द सर्फेसेस। बी इफ अनदर पर्सन इज नियर बाय एंड इनहेल्स द ड्रॉपलेट्स और टचेस these surfaces and further touches this face, eye, mouth, he or she can get an infection. C if the distance is less than 1 meter from the infected person, and D is all of them. So answer is all of the above. Now on description, जैसा कि हमें पता है कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है, ये ट्रांसमिट कर सकते हैं हम कि जितने भी, मान लीजिए अगर कोई इंसान छींक रहा है, खांस रहा है या अपने इन्फेक्टेड हाथों से अपने फेस को, आइज को, माउथ को टच कर रहा है या 1 मीटर की दूरी नहीं बना रहा है तो उसे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, What happens to a person suffering from the COVID-19? क्या होता है जब कोविड-19 के लक्षण हमें पेशेंट में दिखते हैं या वो सफरिंग हो चुका होता है या वो ग्रसित हो चुका होता है कोविड-19 से। सो ऑप्शन इज around 80% of the people will require no treatment as such and will recover on their own, and B is around less than 20% or a small proportion may need hospitalization, and C a very small proportion basically suffering from the chronic illness may need admission in an intensive care unit or ICU, and D is all of the above. So answer is D, all of the above. Now on explanation, a person who develops COVID-19, अगर कोई पर्सन कोविड-19 से ग्रसित है तो मेजोरिटी हम पीपल में 80% जो रहते हैं कि उसमें हम ट्रीटमेंट नहीं देते, उसे सिर्फ रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लेस देन 20% पीपल की बात करें तो उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे। ये एक स्मॉल प्रोपोर्शन पीपल होते हैं जो एक स्मॉल प्रोपोर्शन में या अंडरलाइन हम बोल सकते हैं कि क्रोनिक इलनेस से सफ़र करे हुए, या उन्हें हम इमीडिएट जो है ICU में एडमिट करते हैं। नाउ Question number 9. In which age group the COVID-19 spreads? Option A, COVID-19 occurs in all ages group. B, coronavirus infection is mild in children. C is older person and persons with pre-existing medical conditions are at high risk to develop serious illness, and D is all of the above. So answer is D, all of the above. Now on explanation, जैसा कि हमें पता है कि COVID-19 हम हर ग्रुप
हर एज ग्रुप के पेशेंट के अंदर देखते हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली अगर हमारा जो एम है वो इन्फेक्शन ऑफ द कोरोना वायरस जो हमें दिख रहा है ये माइल्डली चिल्ड्रन के अंदर हमें बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन पर्सन्स और जो ओल्ड एज पर्सन है उनमें बहुत ज़्यादा, और हम बोल सकते हैं कि जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, कैंसर के, लंग्स कैंसर के और डायबिटीज़ के या हार्ट डिजीज़ के, उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कोरोना वायरस? कोरोना वायरस क्या है? ऑप्शन ए, इट इज अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरस, B, it belongs to the family of nidovirus, and C, both A and B, and D, only A is correct. So answer is C, both A and B are correct. Now on description, अगर हम कोरोना वायरस को देखें कि ये लार्ज फैमिली वायरस होता है, ये बिलोंग्स करता है निडोवायरस फैमिली से, जिसे हम निडोवायरलिस ऑर्डर के अंदर रखते हैं, और ये इंक्लूड करता है कोरोना विरिडी को, आर्थ्रोविरिडी को, रोनाविरिडी फैमिली को, ये तीनों फैमिली को इंक्लूड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अगर हम WHO की बात कर रहे हैं तो 11 मई 2020 में उन्होंने अनाउंस किया था एक ऑफिशियल नेम उस डिसीज का जो कॉज करता है 2019 में नोवेल कोरोना वायरस के नाम से फेमस हुआ था, लेकिन उसका न्यू नाम क्या था और नया नाम क्या रखा गया WHO के द्वारा? सो ऑप्शन इज A, कोविड-19, B, कोविड-19, C, CONV-19-20 और D, CONVID-19। सो आंसर इज कोविड-19। नाउ ऑन एक्सप्लेनेशन, जैसा कि हमें पता है WHO के द्वारा जो नया नाम दिया गया कोरोना नोवेल कोरोना वायरस डिसीज को इस कोविड-19। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट केस ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन, पहली बार नोवेल कोरोना वायरस केस कहाँ आइडेंटिफाई किया गया? ऑप्शन ए बीजिंग, बी शंघाई, C, वुहान हबी, एंड D इज तियानजिन। सो आंसर इज C, वुहान हबी। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है कि पहला केस जो था कोरोना वायरस का वो आइडेंटिफाई किया गया था वुहान हबी, ये एक प्रोविंस चाइना के अंदर एक शहर है। यहाँ पर मैक्सिमम रिसर्च सेंटर हम बोल सकते हैं कि चाइना के रिसर्च सेंटर सारी जो है वुहान हबी के अंतर्गत आती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू द कोरोना वायरस? ऑप्शन ए मर्स, B, SARS, C, both, and D, none. So answer is C, both. Now on description, जैसा कि हमें पता है कि कोरोना वायरस किसके रिलेटिव्स आती है, ये एक इलनेस को कॉज करता है जैसे कॉमन कोल्ड, और ज़्यादा सीरियस केस में क्या करता है ये हमें MERS कोव जो वायरस है जिसका हमें फुल फॉर्म भी याद रखना है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या हम जिसे SARS-CoV भी बोलते हैं, जिसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, माइल्ड सिम्टम्स ऑफ नोवेल कोरोना वायरस आर? ऑप्शन ए फीवर, बी कफ, C, shortness of the breathing, and D, all of the above. So answer is D, all of the above. Now on description, जैसा कि हमें पता है people infect हुए नोवेल कोरोना वायरस से या 2019, बट रिपोर्टेड अगर हम देखें तो माइल्ड सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, जैसे फीवर, बुखार का आना, कफ, सर्दी खांसी होना, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होना, वेयर इज अदर कॉमन सिम्टम्स अगर हम देखें जैसे कि रनी नोज, नाक का बार बार बहना, हेडेक, सिर में दर्द होना, शॉर्ट गले में खराश होना, और अदर फीलिंग्स लाइक द अनवेल, और जैसे कि मनचाही हम बोल सकते हैं कि अनब्रीदिंग होना या अनवेल फील करना। सो क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम? ऑप्शन ए ड्यू टू देयर क्लाउन लाइक projection, B, due to their leaf-like projection, C, due to their surface structure of the bricks, and D is none. So answer is A, due to their crown-like projection. Now on description, हमें पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस कैसा दिखता है। कोरोना वायरस एक क्राउन-लाइक प्रोजेक्शन जैसा दिखता है। इस कोरोना वायरस को हमने इसलिए नाम दिया क्राउन कि जैसे दिखने की वजह से हमने कोरोना बोल दिया, और माइक्रोस्कोपिकली जो है हम कोरोना को इन लैटिन लैंग्वेज हेलो बोलते हैं, जिसका मतलब होता है क्राउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16,
is the last question today. What are the precautions that need to be taken to protect from the coronavirus? Option A, cover your nose and mouth when sneezing. B, add more garlic into your diet. And C, visit your doctors for antibiotic treatment. And D, wash your hands after every hour. So answer is A, cover your nose and mouth when sneezing. Now on description, according to our WHO, a person can take precaution by covering the nose and mouth while sneezing by a tissue or an elbow. WHO के दिशा निर्देश के अनुसार जब भी कोई पेशेंट आपके आसपास दिखता है या हमें अपने बचाव के लिए नाक और अपने मुंह को किसी टिश्यू पेपर से या अपने कोहनी से दबा लेना चाहिए जब आपको स्नीजिंग हो या आपको जब सर्दी हो. देन इमीडिएटली थ्रू दी टिश्यू इनटू अ क्लोज्ड डस्टबिन. और जो आप टिश्यू यूज़ कर रहे हो नाक पोंछने में तो आप उस टिश्यू को डस्टबिन में तुरंत डाल दीजिए और दूसरा टिश्यू फिर यूज़ करें आप. आई होप गाइज आप मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था अकॉर्डिंग टू द कोविड-19 के अंतर्गत जितना आना था उन सारे डिस्कस कर रहे हैं. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें. एंड प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना जिससे मैं इम्पोर्टेंट अपडेट्स इजीली आपको कन्वे कर सकूं. और आज की वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है या आप इन फ्यूचर किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप आपका डाउट नेट मुझे इजीली कन्वे कर सकते हैं इन दी माई व्हाट्सअप ग्रुप नंबर. सो माई व्हाट्सअप ग्रुप नंबर इज 9424570979. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. योर सपोर्ट इज अवर पावर. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. स्टे होम, स्टे सेफ.